Namaskar. Happy Gandhi Jayanti to all of you. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year to mark the birth anniversary of the most prominent leader of the Indian independence struggle. The purpose of this day is to honor the iconic leader. He was popularly known for his non-violent movement. Gandhi ji considered non-violence to be a philosophy, a principle, and an experience based on which it is possible to build a better society. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Rajkot in Gujarat. His parents were Karamchand Gandhi and Putlibai. As a student, he was brilliant and from a very early age displayed and fostered virtues of honesty and truthfulness. He completed his school and college education in Gujarat. Mohandas then went to England to study law and became a barrister. On completing his studies in law in 1893, he went to South Africa to practice there. It was here that his eyes were opened to the maltreatment of the Indians. His sentiments rose high and he felt he had to do something about it. Gandhiji returned to India and started a movement to make the people aware that all must help to free India from British rule. He used non-violent methods and asked all Indians to practice Swadeshi, the use of country-made things. Gandhiji led the way by using only khadi clothes. He suffered a lot at the hands of the British rulers and was sent to jail on a number of occasions. The Quit India movement and the non-cooperation movement played a great part in the freedom of India, which eventually dawned on August 15, 1947. ये थी छोटी सी कहानी गांधी जी के बारे में। गांधी जी, जिन्हें पूरा देश प्यारे बापू के नाम से जानता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गांधी जी आज भी हमारे बीच में हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि गांधी एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसे हमें अपने अंदर जीवित रखना होगा। जी हाँ, गांधी जी ने हमें ज़िंदगी के ऐसे पाठ पढ़ाए हैं जिनको अपना कर हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। There is so much one can learn from his life, especially our students. Believe in yourself. खुद पर विश्वास करना। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। Whenever you get any work, then you say, No, I can't do this. You know, why do you say these lines? Because you don't believe in yourself. जब भी आपको कोई नया काम शुरू करना होता है तो आप सोचते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि ये पहले आपको इग्नोर करेंगे, आप पर हंसेंगे, और वही लोग जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके लिए तालियां बजाएंगे। That's why it is very, very important to believe in yourself. You know, this is the biggest quality you need to succeed. Patience and peace. शांति और धैर्य से काम करना। कभी कभी जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, है ना? बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार गुस्से में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। Students, we must remember that sometimes things go wrong, but we should not lose patience. Always speak the truth. हमेशा सच बोलो। ये लाइन आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? पर क्या आपने कभी इस लेसन को अपनी ज़िंदगी में उतारा? शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप दिन भर में जाने अनजाने छोटे बड़े न जाने कितने झूठ बोलते हैं। But dear students, always keep in mind, while telling a little lie may save you from immediate trouble, but the price you may have to pay for it later may be too heavy.
That's why it's important to speak and stand for the truth. Let the change begin from you. हर बदलाव की शुरुआत खुद से करें। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो बदलाव आप अपने आसपास देखना चाहते हैं उस बदलाव की शुरुआत खुद से करें। But what we are doing? We often like to complain about the system or the rules, but we have to think that before changing the system, It is important to bring that change in ourselves. and try to fix our faults. Students, I want to tell you that self-realization is one of the ways to achieve success. Think before you act. The future depends on what you do today. Each simple act or decision matters. Our actions in the present determine our future. गांधी जी कहा करते थे कि अक्लमंद व्यक्ति काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख व्यक्ति काम करने के बाद। इसीलिए बच्चों, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो एक बार ज़रूर सोचें कि ये काम सही है या गलत। अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है और मुझे ये नहीं करना चाहिए तो आप उस काम को कभी नहीं करें, और इस तरह आप लाइफ में हमेशा अच्छे काम करेंगे। बी पॉजिटिव। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों, आपको ये सीखना और समझना होगा कि लाइफ हमेशा आसान नहीं होती है। लाइफ में मुश्किल समय भी आता है, तब हमें हिम्मत रखनी होती है। जब भी आप मुश्किल दौर से गुजरे तो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपनी पॉजिटिविटी से उस मुश्किल दौर में भी अपने लिए अवसर ढूंढें, और इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी सारी मुश्किलें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लिव टू लर्न। Each experience in life teaches us something new, and we should always be ready to learn both inside and outside the classroom. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सफल लोगों की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन से सफलता के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए निरंतर सीखते रहें। आज गांधी जयंती के साथ साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक शांत चित्त व्यक्तित्व थे। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को मुंशी लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हुआ था। वे अपने घर में सबसे छोटे थे, इसीलिए उन्हें प्यार से नन्हे बुलाया जाता था। इनकी माता का नाम रामदुलारी था और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों का महत्व बताया। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। तो आज के दिन हम इन दोनों विभूतियों को शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद। वैष्णव